हाय गाइस, दिस इज डॉक्टर आरती हेयर फ्रॉम पेन केयर क्लिनिक ज़ीरकपुर चंडीगढ़। आज हमारे साथ एक पेशेंट हैं जिनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत थी डिस्क बल्ज होने की वजह से। उनकी नर्व कंप्रेस हो रही थी। उनका एमआरआई है हमारे साथ में। तो वो एमआरआई में उनको L4 L5 एंड L5S1 पे डिस्क बल्ज हुई थी पोस्टीरियो सेंट्रल, जिसकी वजह से उनकी एक टांग में काफ़ी ज़्यादा दर्द आ रही थी। और वो अंडर ट्रेनिंग थे, तो उनकी जो ट्रेनिंग थी वो भी काफ़ी डिस्टर्ब हो रही थी उसकी वजह से। और उनको काफ़ी दिक्कत हो रही थी, तो उनको सर्जरी भी रेकमेंड की गई थी। तो वो हमारे पास आए। सो लेट्स टॉक टू द पेशेंट। हाँ जी, क्या नाम क्या है आपका? मेरा नाम जसप्रीत सिंह। थोड़ा सा ऊंचा बोलेंगे प्लीज़। नेम जसप्रीत सिंह। ओके। जसप्रीत, क्या एज है आपके? मेरी 24। ओके जसप्रीत, क्या हुआ था ये एग्जैक्टली और कब से हुआ जैसे? मैम मतलब कि ड्यूरिंग माई ट्रेनिंग में देर वॉज अ लॉन्ग जंप वी हैव टू डू। किस चीज़ की ट्रेनिंग करते हैं आप? मैम पुलिस ओके। ट्रेनिंग। ਤੇ ਮੈਮ ਉਸ 'ਚ ਮੈਮ ਜਦ ਮੈਂ ਜੰਪ ਲੈਣ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ 'ਚ ਮੇਰਾ ਪੈਰ ਸਲਿਪ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਕਰਕੇ ਇੰਜਰੀ ਆਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ 2 ਮੰਥਸ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਡੀਸਿਨ ਲਿੱਤੀ ਸੀ ਪੇਨ ਕਿਲਰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਨਾਰਮਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। हुआ कहाँ था, दर्द कहाँ हुआ था उस टाइम ਇਹ आपको? ਮੈਮ ਲੈਫਟ ਲੈਗ ਤੇ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਦਰਦ पूरी टांग ਹੋਣਾ। में दर्द जा रही थी ਹਾਂਜੀ आपको? ਨੀਚੇ ਤੱਕ ਦਰਦ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ओके। ਬਹੁਤ मਤਲਬ ਕਿ ਟੋਲਰੇਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਲਿੱਤੀਆਂ ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਨਾਰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਿੰਟਰ ਸੀਜ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਮ 'ਚ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਥੋੜਾ weight ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਉਹਦੇ कितना ਬਾਅਦ। वेट था अप्रॉक्स? ਪ੍ਰੋਪਰ 80 to 90 kg weight ਸੀਗਾ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਮੈਂ ਚੱਕ ਲਿਆ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਬਿਕੋਜ਼ ਮੈਂ ਬੋਡੀ ਹੀਟ ਸੀਗੀ ਪੂਰੀ। ਤੇ ਬਟ ਆਫਟਰ 2 or 3 ਡੇਜ਼ में ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਪੇਨ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। फिर से टांग में ही दर्द आई? टांग 'ਚ ਹੀ ਦਰਦ ਆ ਗਈ ਸੀ ਮੈਨੂੰ। ओके। ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਸ 'ਚ ਤਾਂ ਮੂਵ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵੀ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਬੋਡੀ 'ਚੋਂ। ਉਸ 'ਚ ਏਦਾਂ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਅਗਰ ਤੁਰ ਲਏ ਜਾਂ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਥੋੜਾ ਦਿਖਾਇਆ ਡਾਕਟਰਸ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੈਸਟ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਮ ਚਲੋ ਮੈਂ ਜਿਮ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ। ਬਟ ਜੇ ਮੈਂ ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦਾ ਕੋਚਿੰਗ ਲੈਣ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ 1 to 2 ਆਵਰ ਲਗਾਤਾਰ ਬੈਠ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੇਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ओके। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਪੀਜੀਆਈ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਮਆਰਆਈ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਐਕਸ-ਰੇਜ਼ ਲਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਸ ਇੱਕ ਮੈਕਸਾਮੋਲ ਪੇਨ ਕਿਲਰ ਦਿੱਤੀ ਬਸ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ 6 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਸਰਜਰੀ। अच्छा, उन्होंने डायरेक्टली सर्जरी बोल? डायरेक्टली सर्जरी बोलता ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ फिर ने। आपने पेन किलर ली 6 हफ्ते? हाँ मैं मतलब कि 2 to 3 वीक्स लिੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਮਿਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀ ਕਿ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਫੇਰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਪੇਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ। उसी तरह पेन होने लगी थी ਹਾਂ ਜੇ आपको? ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਿਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਪੇਨ ਕਿਲਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ओके, फिर आप गए थे फिर सर्जरी के लिए? ਨਹੀਂ ਸਰਜਰੀ ਗਏ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਰਿਲੇਟਿਵ ਨੇ ਇੱਥੇ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ओके। ਮੈਂ वो ਇੰਸਟਾ पहले ਪੇਜ। आए थे यहाँ पे? ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਸੀਗੇ ओके। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਸਟਾ ਪੇਜ ਵਗੈਰਾ ਸਾਡਾ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ। ओके, तो उस टाइम आपकी हालत काफ़ी प्रॉब्लमेटिक थी हाँ जब जी आप मैम। आए थे। आपकी टांग भी मतलब ज़रा सी भी नहीं उठ पा रही थी और पेन काफ़ी ज़्यादा थी। हाँ जी। रेस्टिंग में भी पेन था आपको इनफैक्ट उस यस टाइम। मैम। तो हमने आपकी पेन किलर्स वगैरह बंद करवाई ताकि जो आपको ट्रीटमेंट हो उसका जो इफ़ेक्ट आए वो आपको पता चले कि हाँ, ये पेन किलर्स की वजह से नहीं आ रहा है, ये आपका रेगुलर ही आ रहा है। तो अभी कितने दिन हो गए आपको ट्रीटमेंट लेके? कि मैम ਮੈਨੂੰ 5 डेज हुए हैं 6 5 डे। डे 6 डेज हुए हैं। तो इन 5-6 डेज में आपको मतलब कितना इफेक्ट नजर आ रहा है? पहले किस चीज में पेन थी और अब किस चीज में पेन नहीं है? ਮੈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੂਰੀ ਲੱਤ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਨੀਚੇ ਤੱਕ ਤੇ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕੋ ਕਦੀ-ਕਦੀ ਸਿੰਗਲ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਚਾਂसेस ਹੈ ਕਿ ਆ ਜੇ। ओके। ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। अब कल थोड़ी वॉक भी की थी ਹਾਂ आपने? ਵਾਕ ਕਰੀ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੇ ਮਾਰਨਿੰਗ ਚਾਹੀਏ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਜਿਸ नहीं ਦਿਨ तो ਦੇ बिल्कुल ਰੈਸਟ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਦੇ ਬਿਲकुल ठीक। ठीक है। तो अब रेस्टिंग में भी कोई पेन नहीं है नहीं आपको नहीं उठने बैठने में जैसे पहले होती थी रेस्टिंग पे भी जब नहीं आप नहीं आए ਪਹਿਲਾਂ थे? ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਲੀਪਿੰਗ ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ ਸੁੱਤੇ ਵੀ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ तो सोया नहीं जा रहा था? ਸੋਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁਣ नहीं। ਤਾਂ ਬਿਲकुल ठीक है। अब कोई नींद डिस्टर्ब नहीं है नहीं आपकी? नहीं। और आप नॉर्मल सो पा रहे हैं, एक्टिविटीज कर पा रहे हैं हाँ जी अपनी डेली एक्टिविटीज डेली। एटलीस्ट? हाँ जी। बाकी तो एक बार अभी थोड़ा सा इसको सेट होने में और वापस स्ट्रेंथ आने में मसल्स की थोड़ा टाइम लगता है। दैट दैट टेक्स टाइम अराउंड 5-6 डेज और लग जाएंगे आपको। बट आपकी जो रेस्टिंग की और नॉर्मल एक्टिविटीज की पेन है वो कम हो चुकी है हाँ जी। बिल्कुल। तो उस मतलब आपके जैसे
एक्चुअली ना लोग काफी ज्यादा सफर कर रहे होते हैं इस पेन से और उनको पता नहीं होता कि क्या इलाज पॉसिबल है और क्या नहीं है। जैसे आपने भी पहले मेडिकेशन ट्राई की, बट मेडिकेशन से मैं बार बार यही कहती हूँ कि मेडिकेशन से अपने आप डिस्क वो सेट नहीं हो जाएगी। जो आपकी मसल्स टाइट हुई हैं उसकी वजह से स्पाज्म आया है वो कम नहीं हो जाएगा, उसको सेट करना पड़ता है। तो जैसे मैनुअली हम करते हैं, इतना कोई पेनफुल ट्रीटमेंट भी नहीं था आपका, आराम से लिया जा सकता था ट्रीटमेंट भी, कोई जोर जबरदस्ती वाला ट्रीटमेंट नहीं है, कोई झटका वगैरह कुछ नहीं होता। बट थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है, थोड़ा रेस्ट आपको जैसे बताया था इनिशियली हमने, रेस्ट तो आप वैसे भी ले रहे थे बट फिर भी उसका कोई इफेक्ट नहीं आ रहा था। लोग सोचते हैं खाली रेस्ट ले लेते हैं तो उससे ठीक हो जाना चाहिए, पर नहीं होता है ऐसे। रेस्ट के साथ में ट्रीटमेंट इज मस्ट। अब आप अपनी एक्टिविटीज करेंगे जैसे बाकी नॉर्मल अपने रूटीन में आएंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट थोड़े टाइम तक आपको ये मेंटेन रखनी पड़ेगी बिकॉज डिस्क हील हुई है अभी ताज़ी ताज़ी, तो थोड़ी मेंटेनेंस उसके बाद 1-2 महीने तक। इनफैक्ट मैं आपको यही कहूँगी कि थोड़े प्रिकॉशंस रखने हैं और अपने आप को जो मसल स्ट्रेचिंग वगैरह आपको बताएंगे वो सब आपने रखनी है रेगुलर। ठीक है। तो आप बाकी के लोगों को कुछ बोलना चाहेंगे? जैसे यंग एज में आपको भी सर्जरी रेकमेंड कर दी गई थी, तो आपके भी दिमाग में एक चीज आती है कि हाँ हमें पीजीआई से जैसे सर्जरी बोल दी है तो शायद इससे बढ़ के तो कोई चीज नहीं है, अगर वहां पे बोल दिए तो शायद लास्ट ऑप्शन ही सर्जरी बचती है। फिर भी आपने एक सेकंड ओपिनियन ट्राई किया। आपके रिलेटिव्स ने जो बताया था, तो उसका आपको फायदा ही हुआ इनफैक्ट। तो ऐसा नहीं होता, आपको एक बार ट्राई जरूर करना चाहिए कहीं और भी। अगर आप सर्जरी लास्ट ऑप्शन ही होती है तो उससे पहले एक बार ट्राई जरूर करना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि सर्जरी इतना इजी भी नहीं होती है इतनी यंग एज में करवाना। उसके कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं, कंसिक्वेंसेस भी होते हैं फ्यूचर में, ऐसी बात नहीं है। तो उससे अगर जितना बचा जाए, मैं यही सजेस्ट करती हूँ सबको, जितना बचा जाए तो ट्राई करना चाहिए। इस ट्रीटमेंट का कोई नुकसान नहीं है। अगर चलो आपको मैं कहती हूँ 1% के लिए मान भी ले फायदा ना हो तो नुकसान भी नहीं होगा कम से कम। और फायदा हो जाता है तो बहुत ही बढ़िया बात है। सो थैंक यू सो मच जसप्रीत। थैंक यू।